Good morning, all of you. Children, we are in this chapter. Yesterday we have started this. And in this we have discussed that whenever there is a force to cause please participants, please mute your mic all of you. सब लोग पहले माइक म्यूट करो. प्रथम श्रीवास्तव, प्रथम 8F, प्रथम श्रीवास्तव, please mute your mic. Now here we were talking that whenever the force is acting on an object to bring it in motion, then there is another force which is acting in an opposite direction, that is known as force of friction. And that restricts the force to become in an unlimited speed. उसको एक बहुत ज्यादा speed attain नहीं करने देता है, क्योंकि वो हमेशा force of friction is opposing or handling or objecting or restricting the motion of that object. If this will not be there, then the object will not be in a proper motion. They will slip, they will fall, and the motion of the object will not be in a proper way. Then we were talking about this force of friction, in which we have seen the cause of friction. Yesterday we had discussed this topic, children. So can anybody tell me what is the cause of friction? Roughness of the surface. Yes, very good. Roughness of the surface is the cause of that friction. And in that context, I told you that any surface, if it is, we feel that it is smooth, then also it will have some ups and downs, some roughness in it, then only we can work on it. Like I took this example of whiteboard. You will see that this whiteboard is glazy, shiny, but if it is smooth to that extent, then we'll be able to write. क्या हम लोग लिख पाएंगे? No. So there should be some roughness, some ups and downs, and that roughness causes the object to be in motion, to work on it. Like suppose if we are writing with this pen on this blackboard, then the curve what we are doing in the alphabets or in the letters, then that is also caused due to the roughness. And as I told you, children, don't force me to mute you all. Vansh Raj, Pratham Srivastav, Aryan, all of you mute yourself. Mute. Please mute. Pratham Srivastav. All of you, please close your mic, all of you. Then we were talking that if we are, the roughness should be there for us to work on any surface. Then we will talk about the factors affecting friction. What will be the cause of that friction, in which the factors will affect the frictional force. So here, cause of friction, we can conclude that it is the roughness
of that object or surface. Then roughness we described with this symbol, ups and downs, and the greater the roughness of that surface and the smoother it will be less, but there will be some things. Clear? Then we will come to this topic, factors affecting friction. First of all, the force of friction is greater where rougher surfaces are involved. Force of friction वहां ज्यादा होता है जहां surface rough होता है. That we have understood through this that the cause of friction is roughness. अगर roughness ज्यादा होगा तो force of friction ज्यादा होगा. But the smoother the surface, smaller is force of friction. This is also the fact, as I told you, if we take two surface, एक wooden surface ले लो और एक अपना marble या floor ले लो जो अपने घर का होता है, तो आप देखोगे आप wooden surface में आप अपना door ले लो, तो when the wood is there, then the surface will be rough. जितना भी polish कर लो, वो आपके marble floor की तरह polish नहीं हो सकता. ठीक है? So we can conclude the force of friction between two surfaces depend on the nature of surface in contact. चलें जो chapter में highlighted topics होगा ना, जो matter highlighted होगा, that will be the conclusion of that particular paragraph. तो वो आप जरूर read करोगे and read करने के अलावा उसको learn कर लो and then you try to frame a question from that. उस पार्ट से पेज नंबर 89 इंटरलॉक का मतलब होता है लॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस और द रफर और यू कैन से अप्स एंड डाउन. जैसे आपको हम कल 100 का एग्जांपल बताए थे ना, आरी जिससे हम कट करते हैं वुडन ब्लॉक को या वुडन पीस को, जो कारपेंटर यूज करता है, बताए थे कल. यस मैम. यस और नो बोलो. यस मैम. यस मैम. तो उसमें कैसा सरफेस देखते थे हम लोग? इस तरह का सरफेस है, बहुत छोटा पतला पतला एकदम इस तरह का, वो एक हैंडल लगा रहता है और इस तरह के सरफेस में वो अटैच रहता है. ठीक है? ये जो सरफेस है, ये अगर दूसरा एक 100 आप ले लो और इसको इस तरह से ब्लॉक करो, तो ये जो पॉइंट आएगा, सपोज कर लो इसको ब्रॉडर सेंस में समझो, यहाँ पर जो सरफेस है ये क्या हो रहा है? आर दे गेटिंग इंटरलॉक? एक दूसरे से ब्लॉक हो जाए, एक दूसरे में सट जाएगा. सपोज कर लो आई टेक माय फिंगर, इसको इस तरह से हम ब्लॉक करेंगे. यहाँ भी अप्स एंड डाउन है, ये आपका अप्स एंड डाउन है ना. अगर आप फिंगर को लोगे तो दीज आर द अप्स एंड डाउन. अगर इसको ऐसे रखेंगे, इट इज गेटिंग इंटरलॉक. ये इंटरलॉक हुआ तो Yes ma'am. Yes, ma'am. This happens in the rough surface. जितना ज्यादा rough surface होगा, इसका ups and downs उतना बड़ा होगा. जितना बड़ा होगा, interlocking उतना ज्यादा. मैम ग्लास और रबर भी तो बहुत स्मूथ सरफेस. दोनों सेम नेचर का होना चाहिए. मैम ग्लास और रबर भी तो स्मूथ सरफेस है, पर उसमें तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है. Pardon? बोलो एक बार और बोलो, अपना क्वेश्चन बोलो. मैम ग्लास और रबर भी तो स्मूथ सरफेस है, पर क्या रफ सरफेस है बोलो, एक बार और बताइए. रबर. मैम ग्लास और रबर जब आपस में इंटरैक्ट होता है तो उसमें तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, पर वो तो स्मूथ सरफेस है. लेकिन आप उसका इंटरलॉकिंग देखोगे तब ना, उसका जो सरफेस आप देखोगे
तो स्मूथ आप देख रहे हो ना, लेकिन रबर और ग्लास दोनों में, ग्लास में कंपैरिजन टू रबर कम होगा, वो स्मूथर है, ग्लास इज स्मूथर एज कंपेयर्ड। अभी आपको हम बताएं, एनी सरफेस which is there will have some or the other ups and downs, means roughness in it according to its texture. तो रफ सरफेस रबर में भी होता है। तो आप जब रबर का कोई टायर बनाते हो तो जो स्मूथनेस है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें ग्रूव्स बनाया जाता है ना। ऐसे रबर को लेके हम टायर तो नहीं बना देते हैं, उसका रबर का जो यूज होता है, जो हम अभी मोशन और फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में रबर को हम यूज करते हैं टायर बनाने में। तो टायर बनाने में आपको क्या किया जाता है, उसमें क्या रिमॉडलिंग किया जाता है, बोल दो मैम। रबर को मैम अप्स एंड डाउन्स में रबर, हाँ, उसमें ग्रूव्स क्रिएट किया जाता है। और वो जितने बड़े व्हीकल के लिए टायर बनता है उसका ग्रूव्स उतना ज्यादा होता है, उतना डेप्थ का होता है। आप कंपेयर कर लो एक बाईसाइकिल के टायर में और एक कार या ट्रक के टायर में, दोनों में आपको डिफरेंस उसके ग्रूव्स में समझ में आएगा। ग्रूव्स आपको ट्रक के टायर में ज्यादा है, बिकॉज इट हैज टू कैरी हेवी लोड, इट इज अ हेवी व्हीकल, इसलिए उसका टायर का नंबर भी ज्यादा होता है और उसका ग्रूव्स को ज्यादा डेप्थ का बनाया जाता है। ये तो आप वॉच किए होगे ना। लेकिन ग्लास को कभी हम लोग टायर में यूज करते हैं क्या? ग्लास को कभी टायर में यूज ग्लास पर वॉक करना नहीं ना है, उस पर कोई मोशन करना नहीं ना है, उसका यूटिलिटी अलग है। ग्लास को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, या तो मिरर बनाने के लिए यूज करते हैं या कोई डोर बनाने के लिए यूज करते हैं। वॉकिंग और मोशन के लिए तो हम ग्लास यूज नहीं ना करते हैं। ये आप समझो पहले बात को। अलग अलग वर्क है, अलग अलग यूटिलिटी है, अलग अलग सब्सटेंसेस का। ग्लास को हम क्या करेंगे, किसी चीज को कवर करने के लिए यूज करेंगे, अलमीरा को कवर करने के लिए यूज करेंगे, शोपीस को कवर करने के लिए यूज करेंगे, उसका टॉयज बनाएंगे, लेकिन उसको उस सरफेस पर वॉक तो नहीं करते हैं ना। कभी वॉकिंग सरफेस देखे हो क्या ग्लास का बना हुआ? होता है उसको शोपीस, शोकेस इस तरह का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर आएंगे। The force of friction between two surfaces depend on the nature of the surface in contact. अब फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है कि वो नेचर कैसा है सरफेस का, और टू सरफेसेस को, अगर वो रफ सरफेस का होगा और चाहे एक रफ है एक थोड़ा उससे फाइन है, स्मूथर है, तो उसका लॉकिंग उसी पर डिपेंड करेगा। जो अभी हम लोग इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, तो दिस टू सरफेसेस हैविंग सिमिलर अप्स एंड डाउन्स, तो उसमें तो आपको लॉकिंग इजी होगा। लेकिन जिसमें डिसिमिलर, सपोज ये बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, ये थोड़ा स्मूथर है, दिस इज योर स्मूथर सरफेस, ये स्मूथ, तो क्या होगा, इसका अप्स एंड डाउन्स थोड़ा छोटा होगा, गैप्स थोड़ा छोटा होगा और इसका थोड़ा बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो ये दूसरे जगह लॉक करेगा, उसका जहां भी कॉल करेगा उस पर ही लॉकिंग करेगा, लेकिन लॉकिंग करेगा जरूर, because this at this point is that the nature of the two surfaces in contact. तो वो आप देखोगे कि grip of that working, that motion will depend on the interlocking of these two surfaces. कितना वो इंटरलॉक कर रहा है। इसीलिए आप देखते होगे कि रोड क्या चीज का बना हुआ, हमेशा कंक्रीट का बना हुआ है ना। उसको भले ही थोड़ा स्मूथर बनाया जाता है, लेकिन जहां ज्यादा स्मूथ रोड होता है उसको थोड़ा रफ करने के लिए उसमें पियर्स किया जाता है बिगर पीसेस ऑफ कंक्रीट, सो दैट जो हेवी व्हीकल्स है या जो व्हीकल्स फास्ट मूविंग है वो स्किड ना करे, वो स्लिप ना करे। हम लोग का फ्लाईओवर बना था, ये आपको
राजा बाजार वाला जो बड़ा वाला फ्लाईओवर है, तो आप उस पर देखे होंगे कि वो बहुत लंबा फ्लाईओवर बना और स्मूथ भी हुआ। Yes, ma'am. लेकिन उसको रफ बनाने के लिए कहीं कहीं हमेशा उसके नेचर को, उसके सरफेस के नेचर को कम किया गया, रफ किया, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट। अब आपके पास एक एक्टिविटी है, यू हैव टू टेक अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक ले लो, सपोज दिस इज योर वुडन ब्लॉक, एक हम वुडन ब्लॉक यहाँ ड्रॉ, and this wooden block is kept on a surface, एक surface पर रखा हुआ है, किसी भी surface पे. Then we are with our hand, we are pulling this wooden block, ठीक है? Force of friction opposite direction में work करेगा. Then आप उसका weight यहाँ note करो, इस पे this weighing balance, ये spring weighing balance है, and you are just putting the reading the measurement in the spring balance on the horizontal surface. Then after that, the force of friction increases with increase in weight. What we have to prove here? अब इसके ऊपर एक weight रख, any weight, कोई block रखो, iron block, wooden block, anything. Again you pull it. What will happen? The measuring spring balance will show a difference in the force of friction working over there. Why? Because force of friction also depends upon the force pressing the two surfaces. उसके ऊपर अगर weight रख दीजिएगा तो वो force of friction वहां पे ज्यादा act करने लगे. क्यों? क्योंकि वो heavy हो गया. That wooden block has become heavy now. अब heavy हो गया तो उसका फोर्स क्या हो रहा है? प्रेस कर रहा है उस वुडन ब्लॉक को. तो जब प्रेस कर रहा है तो ये सरफेस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है और उसको खींचना ज्यादा मुश्किल होगा. तो जब ज्यादा खींचना मुश्किल होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा. जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? फिर से बता दीजिए ना. हाँ, अभी हम बोले एक चीज कि नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डिपेंड करेगा. दो सरफेसेस में इंटरलॉकिंग कैसा हो रहा है? अगर कम हो रहा है तो स्पीड ज्यादा होगा जो कि बैलेंस्ड नहीं होगा. अगर नेचर और इंटरलॉकिंग ज्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस्ड होगा. वहां दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा. लेकिन जिसमें इंटरलॉकिंग कम होगा उसमें थोड़ा मुश्किल होगा फ्रिक्शनल फोर्स को वर्क करने में, और जिसमें ज्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम करेगा. तो अभी हम लोग किस बात पर कंक्लूड किए थे कि नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, दोनों सरफेस का नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो स्मूदर ज्यादा ना हो. अगर ज्यादा होगा तो वहां वर्क करना आपको मुश्किल होगा. जैसे सपोज कर लो आप किसी मॉल में चले जाते जहाँ हर जगह आपको ग्रेनाइट एंड मार्बल एंड पॉलिश सरफेस, आपका शूज कभी कभी वहां स्किड करता है कि नहीं करता है? या आपको अपना पैर पूरा प्रेस करके उसमें चलना पड़ता है? ये कभी आप वॉच किए हो? कभी भी मॉल में जाने पे मॉल का क्या होता है? टू गिव इट अ गुड फिनिशिंग, एक अच्छा फिनिशिंग देने के लिए, चमकीला फिनिशिंग देने के लिए वहां पे पॉलिश्ड सरफेसेस आर यूज्ड, बहुत
हाई क्वालिटी का मार्बल लगा देता है, ग्रेनाइट लगा देता है, बट हम लोग जब, आप लोग अभी यंग हो, हम लोग जब चलते हैं ना तो वो स्लिप करता है, दैट इज स्लिपिंग। तो आपको थोड़ा पैर को प्रेस करके चलना पड़ता है उसमें, और उससे आपका फोर्स ज्यादा लगता है, नीचे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां ज्यादा वर्क करेगा। तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इम्पोर्टेंट। जो आप टू सरफेसेस, आपका शूज और जिस पर आप वॉक कर रहे हैं, दोनों वहां वर्क कर रहा है, तो वो स्मूथर है, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स से प्रेस करके चलना। देन द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपका वेट किसी भी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा है, देन द फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर उस पर भी डिपेंड करे, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे सपोज कर लो, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सपोज पहले ये वुडन ब्लॉक को हटा दो, इस वेट को हटा, एक हम वुडन ब्लॉक इसी तरह का लिए, उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से खींच रहे हैं, आप उस पर देखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स या वहां जो फोर्स लग रहा है दैट इज लेस एज कंपेयर टू व्हेन यू आर पुटिंग अ वेट। एक इस पर वेट रख दो, एनी वेट, 5 kg 10 kg कुछ भी, 5 kg का एक वेट रख दो, कोई बुक रख दो, कोई वुडन ब्लॉक रख दो, एंड देन अगेन यू स्ट्रेच थ्रू द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस से फिर स्ट्रेच कर, you will see that the force which was acting over there previously, that was less as compared to this time. तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? More. So what we are concluding from this experiment, that force pressing the two surfaces together, frictional force depends on the force pressing the two surfaces. Is it clear? Anybody? कोई बच्चे प्लीज रिस्पॉन्स करिए। मैम ये मैम फोर्स दोनों इक्वल होगा क्या? हम बोल रहे हैं कि जब पहली बार आप यहाँ वेइंग मशीन में देखोगे स्प्रिंग बैलेंस में, तो वो कम फोर्स होगा, और जब दूसरा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स दोबारा भी वर्क करेगा जब वेट ज्यादा होगा। जैसे फोर्स इंक्रीज करता है फ्रिक्शनल फोर्स भी। यस मैम। All sorts of things inside, बहुत सारा सामान है उसमें, आप अपना फोर्स उसमें लगा रहे हो, you are trying to push it, you are unable to push it because it is full of that heavy objects and things over it. तो आपका जो फोर्स लग रहा है, क्या कोई फोर्स उसमें एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? Is that force working or not working? At that time आप फोर्स तो लगा रहे हो ना, तो फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? नो। तो आपका फोर्स कहाँ जा रहा है? आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो ना उसको। जैसे सपोज कर लो आप बॉल पे, जब आप गुस्सा होते हैं तो हिट करते हो, तो आपका फोर्स लगा कि नहीं लगा? yes ma'am yes ma'am Did it act or not? yes वो एक्ट किया, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट नहीं हुआ तो फोर्स जो एक्ट किया उसको क्या बोलेंगे? That will be called as static friction working or static force acting over there. जब static force काम करेगा
तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसको अपोज करने के लिए काम करेगा ना। जैसे सपोज कर लो बहुत बड़ा सा आपका हेवी लॉग ऑफ वुड है या अलमीरा है, जो भी है, आप यहाँ फोर्स लगाए, ये मूवमेंट में नहीं है, आपका फोर्स तो लगा, आपका एनर्जी लगा उसमें, एट द सेम टाइम यहाँ फ्रिक्शन भी काम किया, तो उसको अपोज कर रहा है। अपोज नहीं करेगा तब तो वो मूवमेंट में आ ही जाए, लेकिन यहाँ पर अपोज कर रहा है ना आपके फोर्स को, तो आपका फोर्स उस लिमिट तक नहीं जा रहा है कि उसको मूव कर सके। तो आप क्या करिएगा, आप अपने सर्वेंट को बुलाइएगा, आप अपने फादर को बुलाइएगा, then your father, second one is coming, first आप हुए, सेकेंड आपका सर्वेंट हुआ, और थर्ड आपके फादर हुए। जब आपके फादर ये अलमीरा स्लोली स्लाइड करने लगे, तो ये जो जब ये स्लाइड किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जब that was your limited frictional force, और जब ये मूव करने लगा तो that was your sliding frictional force. Any question? कोई क्वेश्चन है आपके पास? फिर से सुनो एक बार, ये आपके पास बहुत बड़ा एक अलमीरा है जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज यू, देन योर सर्वेंट, देन योर फादर। ये तीनों का वर्क कर रहा है फोर्स वहां, लेकिन एक बार नहीं, एक एक करके। पहले आप अप्लाई किए अपना फोर्स, आपसे मूव नहीं किया, उसके बाद ये सेकंड आपका सर्वेंट आया, देन ऑल्सो इट डिडंट मूव, then that was considered to be as static frictional force, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उस अलमीरा में कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। Again your father joined and then the almirah started sliding, थोड़ा खिसका, तो जब जिस पॉइंट पर वो स्टार्ट किया मूव करना, that was known as limiting frictional force, मतलब स्टैटिक को ब्रेक कर दिया वहां पे, और वो रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू स्लाइड। आप उसके बाद जब ये अपना और फोर्स लगाए, आपके फादर मींस तीनों कोई मिलके, तो आप देखते होंगे कि ये स्लाइड करने लगा, they started moving, then you were able to shift it, so that was known as sliding friction. Any question till here? No ma'am. No ma'am. Clear? No, ma'am. Is clear? Yes ma'am. Yes. Yes. ये कहती है कि अगर आप एक फर्स्ट में F यूनिट फोर्स लगाते हो, तो दैट इज बीइंग अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लेकिन अगर कंबाइन तो इलेक्ट्रिक को ब्रेक करके लिमिटिंग में आता है, और लिमिटिंग के बाद वो स्लाइडिंग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द सेम थिंग, वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, देयर इज फॉर 3F लेना, तो F आपका फोर्स हुआ, 2F is your servant's force and 3F will be your along with your फादर। तो ये तीनों फोर्स मिलके जब वो अलमीरा को शिफ्ट करने के लिए रेडी, मतलब that was able to break that static frictional force, then that limitation is known as limiting force, frictional force, and when it was ready to slide, then that was known as sliding frictional force. ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? तीन बात अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। स्टैटिक, जब वो रेस्ट के पोजीशन में है, फोर्स तो हमारा लग ही रहा है, कि दोनों का लग रहा है, आपका भी लग रहा है, आपके सर्वेंट का भी लग रहा है,
तो उस सिचुएशन में that was a static. When your father joined, then that was your limiting, ready to slide over. And then after that, जब ज्यादा effort लगा है तो वो slide करने लगा. तो that was your sliding. Factors. Started. Yes, ma'am. चलो read करो जल्दी. Factors affecting friction. The force of friction between two surfaces in contact depends on the extent of their roughness or smoothness. We can therefore say the force of friction between two surfaces depends on the nature of the surfaces in contact. Do you know, when one surface is placed over another surface, humps of their molecules press against each other and get interlocked. The pressure values at the points of contact are therefore high. The result is small joints being formed there due to the strong intermolecular forces between the molecules of the surfaces in contact. These joints have to be broken apart, usually observe and talk of this effect in terms of the more convenient concept of the force of friction. Activity 2. Tie string shown in the figure. Note down the reading on the spring balance. When the block just begins to move, it keeps a measure of the force of friction between the surface of the block and the floor. Now keep a book on the block. Again pull the block by the spring balance. It moves over horizontal surface. It presses down against the surface by a force equal to its weight. The force of friction increases with increase in the weight of the body. Hence, in the second case, reading on the spring balance would be more. The force of friction is thus seen to depend on the magnitude of the force pressing the two surfaces together. We can now say that the force of friction depends on nature of the two surfaces in contact, force pressing the two surfaces together. Do you know? It is interesting to note that the force of friction between two surfaces does not vary with their apparent area of contact, their speed relative to each other after the start of motion. Static and sliding friction. We now understand that force of friction is the force exerted by a surface when an object moves across it. Hence, we can say that there are two types of friction, static friction, sliding friction. Let us perform some activities that can help us to understand the difference between the two. Activity 3. Try to push a large to make it move across the floor by applying a small force, say F units. What do we find? The box remains at rest. Now, increase the applied force to 2F units. What do we find now? It still remains at rest. When an external force acts on the box, the force of friction, known as static friction, comes into play and opposes the motion of the box. The static friction balances the force which we exert on the box at rest. When applied force is increased to, say, 2F, static friction also increases to 2F and again opposes the motion of the box. Now increase the applied force gradually till the box just begins to slide over the horizontal surface floor. This activity shows that force of static friction increases with an increase of the applied force. In other words, static friction is a self-adjusting force. However, it can increase only up to a certain limit. The maximum value of the force of static friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface. At rest, of friction comes into play. This static friction opposes the applied force. On increasing the applied force, static friction
also increases. However, it can increase only up to a certain maximum value. This maximum value, when the applied force is increased beyond the limiting friction, the body begins to slide over the surface between the two surfaces. This force of friction is a little less than the limiting force of static friction. Our day-to-day experience tells us that it is easier to take sliding an object once it has been put in motion. Okay. So here, children, you will read once again what is taught, and then you will see that whatever we have discussed in the class is the force of friction between two surfaces does not vary according to the contact area, apparent contact area, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और रिलेटिव स्पीड ऑफ each other, दोनों के स्पीड पर भी वैरी नहीं करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और कॉन्टैक्ट एरिया पर भी. दिस इज द ट्रू फैक्ट. क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, so your work is to read it, read the chapter, go through the chapter, because you have to understand to that level in which it is written in your book. I have tried to minimize the topic usko idea wise, so that you have to, that is to your understanding level. तो इसमें पढ़िएगा क्या क्या. पहले तो 89 पेज नंबर में जो हाईलाइटेड पोर्शन है 89 and 90 में, और definition of stats which are affecting friction. Clear? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Any question, any queries है आपके पास? If you have any query, you can put it. Yes or no? No, ma'am. तो आप उसको एक बार पढ़ोगे, पहले रीड करोगे पूरा चैप्टर जहां तक बताए हैं, और तब आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, देन यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आप इसको पूछिएगा. ठीक है? Yes, ma'am. ओके. थैंक यू.